السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں خاموش سفارتکاری تیز، سیز فائر ڈیڈ لائن سے پہلے پیش رفت کے لیے کوششیں۔ ذرائع کا کہنا ہے ایرانی وزیر خارجہ کی تہران روانگی سے پہلے اہم ملاقات ہوئی، جس میں مذاکراتی عمل پر گفتگو کی گئی۔ اسلام آباد اگلے مرحلے کو فیصلہ کن بنانے کے لیے متحرک، سول اور عسکری قیادت کی مشترکہ سفارتی کوششیں، اعلیٰ سطح پر رابطے جاری۔ پاکستان کی کوشش ہے جنگ بندی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ وفاقی وزراء کو امریکہ ایران مذاکرات سے متعلق آگاہ کیا جائے گا۔ مذاکرات کے لیے پاکستان کی کوششوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی دعوت پر وزیر اعظم شہباز شریف آئندہ چند روز میں سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ امریکہ ایران مذاکرات کے آئندہ کے لائحہ عمل پر تبادلہ خیال متوقع۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ سفارتی کوششوں پر بھی غور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے جاپان کی وزیر اعظم کا رابطہ۔ جاپانی وزیر اعظم نے جنگ بندی اور مذاکرات کے انعقاد میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان جنگ بندی کو برقرار رکھنے کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ اسلام آباد مذاکرات نے پائیدار سفارتی فریم ورک کی بنیاد رکھ دی۔ اسلام آباد مذاکرات محض ایک ایونٹ نہیں بلکہ مسلسل عمل ہے۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے مذاکرات کے لیے بہترین لاجسٹک سہولیات فراہم کی۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اظہار تشکر۔ رضا امیری مقدم نے کہا پاکستانی اداروں نے مذاکرات کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے انتھک کام کیا۔ ایف آئی اے ٹھیک کام کرتی تو نیب کی ضرورت نہ پڑتی۔ یہ سارا کام ایف آئی اے کا ہے جو نیب کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایف آئی اے میں تعینات نئے اسسٹنٹ ڈائریکٹرز اور انسپیکٹر سے خطاب۔ کہا ایف آئی اے جیسے اہم ادارے کو سب سے زیادہ کرپشن خراب کرتی ہے۔ وعدہ کرتا ہوں آپ کے ہر مسئلے کے حل کے لیے ممکنہ حد تک جاؤں گا۔ آپ کو بھی وعدہ کرنا ہوگا کہ ایف آئی اے سے کرپشن کا مکمل خاتمہ کریں گے۔ کوئی اہلکار کرپشن میں ملوث پایا گیا تو اس کے لیے معافی نہیں ہوگی۔ ہنگو میں انسداد پولیو ٹیم کی سیکیورٹی پر مامور پولیس پر فائرنگ، اسرار الحق نامی اہلکار شہید، 4 زخمی ہو گئے۔ ڈی آئی جی کوہاٹ کا کہنا ہے جوابی کارروائی میں 2 دہشت گرد ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ فرار ہونے والے دہشت گرد اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی واقعے کی مذمت، آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی۔ کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حکومت اور عوام ایک پیج پر ہیں۔ دہشت گرد اپنے مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ بنو میں 20 اپریل تک دفعہ 144 نافذ، اسلحے کی نمائش اور ڈبل سواری پر پابندی آئی۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے 19 اپریل کو جلسے کا اعلان کر دیا۔ سہیل آفریدی نے کہا کارکنوں سے اپیل ہے وہ مردان ریلوے گراؤنڈ میں 3 بجے جمع ہوں۔ ہم ثابت کریں گے پی ٹی آئی آج بھی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ دنیا کو دکھائیں گے بانی جیل میں ہو کر بھی بڑی سیاسی طاقت رکھتے ہیں۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے سہیل آفریدی کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ وارنٹ ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات کے کیس میں عدم حاضری پر جاری کیے گئے ہیں۔ عدالت نے گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ سماعت 16 اپریل تک ملتوی۔ پنجاب میں بلا معاوضہ میت منتقلی سروس کا آغاز، پہلے مرحلے میں لاہور، ملتان اور راولپنڈی کے سرکاری اسپتالوں میں سروس دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں سوگوار خاندان سے منہ مانگے کرائے وصول کرنا افسوسناک ہے۔ ریسکیو اہلکار اب کسی بھی صورت میت کی منتقلی پر رقم وصول نہ کریں۔ سرکاری اسپتال سے گھر تک میت کی بلا معاوضہ منتقلی کے لیے 1122 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ کراچی میں گیس کا بحران سنگین ہو گیا، عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا۔ ایم کیو ایم کے ارکان سندھ اسمبلی کا کہنا ہے بھاری بلوں کے باوجود چولہے ٹھنڈے پڑے ہیں۔ محنت کش طبقے کو ہوٹل کے مہنگے کھانوں اور سلنڈر مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ ملک کے معاشی ہب کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک بند کیا جائے۔ وفاقی حکومت کراچی دشمنی پر مبنی اقدامات پر فوری مداخلت کرے۔ There is no way that they're going to get. They still want it. And they made that clear the other night. Iran will not have a nuclear weapon. We have a blockade going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil. And that will be very effective. امریکہ کا ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کا اعلان، امریکی صدر کہتے ہیں ایران نے وعدہ خلافی کی، آبنائے ہرمز کھولنے کا وعدہ پورا نہیں کیا،
आबनाए हुर्मुज़ आज से बंद कर देंगे। अब ईरान तेल नहीं बेच सकेगा। ईरान मुज़ाकरात में वापस आए ना आए परवाह नहीं। ईरान को अब जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। जो जहाज ईरान को टोल देगा उसे समंदर में महफूज रास्ता नहीं मिलेगा। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है तमाम मुल्कों के जहाजों पर नाकाबंदी यकसा लागू होगी। आबनाए हुर्मुज़ से दीगर मुल्कों की जानिब जाने वाले जहाजों को नहीं रोका जाएगा। तमाम जहाज अमरीकी बहरिया से राब्ते में रहें। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7 बजे अमरीकी बहरिया नाकाबंदी करेगी। लड़ोगे तो लड़ेंगे। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के ऐलान पर ईरान ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। ईरानी मुज़ाकराती वक्त के सरबराह स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, सादिक ट्रंप की धमकियों से ईरान की पोजीशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमरीकी किसी मंतक के साथ आए तो मंतकी जवाब देंगे, फिर हमारे इरादों का इम्तिहान लिया तो बड़ा सबक सिखाएंगे। बद-एतमादी की दीवार 77 साल पुरानी है। अमरीकियों पर भरोसा नहीं, उन्हें सबसे पहले हमारा एतमाद हासिल करना चाहिए। तेहरान में बैनर्स आवेज़, आबनाए हुर्मुज़ ईरान का हिस्सा है और रहेगा की तहरीर दर्ज। पासदाराने इनकलाब का आबनाए हुर्मुज़ से अमरीकी जहाजों को रोकने का दावा। तस्नीम न्यूज़ और फारस न्यूज़ ने पासदाराने इनकलाब के हवाले से वीडियो जारी कर दी। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक वीडियो में अमरीकी जहाजों को पीछे हटने की वार्निंग दी जा रही है। वीडियो में सुना जा सकता है ईरानी बहरिया अमरीकी नेवी के जहाज को मुतनब्बे कर रही है कि आबनाए हुर्मुज़ से दूर रहे वरना उसे निशाना बनाया जा सकता है। अमरीका की जानिब से इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है। बरतानिया का आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी की हिमायत से साफ इनकार। बरतानवी वज़ीर आज़म कहते हैं चाहे जितना भी दबाव डालें बरतानिया को इस जंग में नहीं घसीटा जा सकता। आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खुला रखना ही अव्वलीन तरजीह है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म कहते हैं अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के लिए मदद नहीं मांगी, मुज़ाकरात फिर होने चाहिए। चीन का आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी की धमकी पर तशवीश का इज़हार। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है आबनाए हुर्मुज़ को महफूज और बिला रुकावट रखना आलमी बरादरी के मुफाद में है। चीफ काबीना सेक्रेटरी जापान ने कहा आबनाए हुर्मुज़ में माइन स्वीपर भेजने का कोई हतमी फैसला नहीं किया। जापान फरीकैन के दरमियान जामे मफाहमत चाहता है। इसराइल ईरान के बाद तुर्की को अपना नया दुश्मन करार दे सकता है। ईरान और अमरीका जंगबंदी में मुखलिस हैं लेकिन इसराइल खलल डाल सकता है। तुर्क वजीर खारजा ने खबरदार कर दिया। इंटरव्यू में कहा तुर्की पुरअमन तरीके से आबनाए हुर्मुज़ खोलने का हामी है। आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए मुसल्लह बैनुल-अक़वामी मुदाखलत पर संगीन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। स्पेन ने अमरीका की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी का फैसला बेमानी और नाकाबिल फहम करार दे दिया। वजीर दिफा मार्गरेटा रोबल्स का कहना था अमरीकी इक़दाम से सूरत हाल मजीद पेचीदा हो रही है। We don't like it. We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. अमरीकी सदर ट्रंप की नेटो और पोप पर तनकीद। कहा मैं नेटो से मायूस हूँ। हम नेटो को $1 ट्रिलियन देते हैं लेकिन वो हमारी मदद के लिए नहीं आया। अब अगर नेटो मदद करना चाहता है तो इस वक्त कोई खतरा नहीं बचा। पोप लियो अच्छा काम नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में पोप लियो को जराइम पसंद है। पोप लियो अगर कहीं ईरान के पास एटमी हथियार हो तो ये बुरी बात है। लियो को बतौर पोप खुद को दुरुस्त करना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है हम इस्लामाबाद मुआहदे से चंद इंच के फासले पर थे। मुआहदा होने ही वाला था लेकिन अमेरिका का सख्त रवैया रुकावट बन गया। अमेरिका ने ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की कोशिश की और अहदाफ बदले। नेक नियति का जवाब नेक नियति और दुश्मनी का जवाब दुश्मनी होती है। अमेरिका और ईरान में सिफारतकारी के दरवाजे बंद नहीं हुए। अमेरिका और ईरान में चंद रोज बाद बातचीत का एक और राउंड हो सकता है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट लिखा ईरान के साथ सिफारतकारी के दरवाजे खुले हैं। खित्ते के मुमालिक दोबारा मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। जंगबंदी में मजीद तौसी की कोशिश भी की जा रही है। अमेरिका ईरान की मुत्तज़ाद बयानात के बावजूद मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। इसराइल के लेबनान पर मुसलसल हमले। जुनूबी कस्बे बिन्ते जुबैल पर बमबारी। 100 से ज़ायद जंगजू मारने का दावा। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली तैयारों ने जुनूबी लेबनान पर बमबारी की। फॉस्फोरस शेल्स फेंके। 5 अफराद जहाँ बहक मुतादिद जख्मी। हिज़्बुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई करते हुए शिमाली इसराइल पर रॉकेट बरसाए। तेरियाज शिमोना के इलाकों को निशाना बनाया। इसराइली फौज ने जुनूबी लेबनान में अपने 2 फौजी जख्मी होने की तस्दीक की। लेबनानी वजारत सेहत का कहना है 2 मार्च से अब तक इसराइली हमलों में 2055 अफराद जहाँ बहक और 6600 जख्मी हो चुके हैं। सिक्योरिटी इदारों की मौसर कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए जासूसी में मुलव्वस 3 अफराद गिरफ्तार।
ذرائع کا کہنا ہے गिरफ्तार मुलजिमान का ताल्लुक नारोवाल, बहावलपुर और वादी नीलम से है। मुलजिमान को सोशल मीडिया ऐप्स पर खवातीन और रकम का झांसा देकर हसास मालूमात ली गई। रकम की मुंतकिली ईजी पैसा, क्रिप्टो वॉलेट्स और बैंक अकाउंट्स के जरिए की गई। मुलजिमान ने एतराफ़ किया वो रॉ से मुंसलिक खवातीन से सोशल मीडिया के जरिए राब्ते में थे। मुलजिमान को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाकर सजाएं सुना दी गई। अब नए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के ऐलान के बाद बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। लंदन ब्रांड खाम तेल की कीमत 7.82% इजाफे से $102.64 फी बैरल हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत में 8.2% इजाफा, कीमत $104.49 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 6000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई। इंडेक्स 1,60,952 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी कारोबार का आगाज गिरावट से हुआ। टोक्यो का निकाई इंडेक्स 2% और जनूबी कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 1.1% कमी के साथ खुला। हांगकांग के हैंग सेंग और शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1% कमी। मुंबई सेंसेक्स इंडेक्स में 2%, निफ्टी 50 में 1.8% कमी देखी जा रही है। सोने और चांदी की कीमतों में कमी, फी तोला सोने की कीमत 1600 रुपए कम होकर 4,95,362 हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1371 रुपए कमी से 4,24,693 रुपए पर आ गई। डेविड वार्नर अच्छा कप्तान है, एडम जंपा टीम मैन है। ऐसा लगता है वो बहुत अरसे से कराची से खेल रहा है। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल की HPL PSL डिजिटल से गुफ्तगू, कहा लोग कह रहे हैं 2020 की तरह इस साल भी कराची टूर्नामेंट जीत जाएगा। PSL के दौरान टीम मालिकान के साथ होने से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ता है। 3 साल का टीम बनाने का फैसला सपोर्ट स्टाफ पर छोड़ा। नताइज ठीक नहीं आए तो दोबारा ड्राइविंग सीट संभाली। HBL PSL 11 में आज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें नेशनल स्टेडियम कराची में मध्य मुकाबला आएंगी। जो भी टीम जीतेगी पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन हासिल कर लेगी। फिल्म मेरा लियारी UK एशियन फिल्म फेस्टिवल में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। UK एशियन फिल्म फेस्टिवल में फिल्म की नुमाइश 2 मई को होगी। शर्जील मेमन ने कहा कि फिल्म मेरा लियारी 8 मई को पाकिस्तान भर में रिलीज की जाएगी। फिल्म की कहानी लियारी के स्पोर्ट्स कल्चर, तहजीब और खवातीन की खुद मुख्तारी के गिर्द घूमती है। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए होम TV न्यूज़।